Very good morning to you all. My name is Prabal Pratap Singh. Welcome to Sanskar Valley Academy. Today we are going to start chapter 6 Hot Desert Wildlife. The camel is very useful animal in a desert. Camel जो है बहुत ही यूजफुल है डेजर्ट में. It can travel fast in sandy desert और ये डेजर्ट में बहुत फास्ट चल सकता है because its bite feet are podded, padded and do not sink into the sand. और जो इसके पैर होते हैं कैसे होते हैं गद्दीदार इसलिए ये सैंड में धंसते नहीं हैं. इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज और ये बिना खाए पिए बहुत दिनों तक रह सकता है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अ डेजर्ट ये बहुत ही हेल्पफुल है रेगिस्तान में डेजर्ट में वेयर देर इज स्कैरिसिटी ऑफ वाटर क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है. द आइज ऑफ nostrils of camels do not get damaged during a sandstorm. Camel being the most important means of transport is called the shape of the desert और ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको शेप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. Arabian horses and jackals move swiftly across the desert. Wolves and hyenas live in mountains, highlands, and distinctive animal of Saudi Arabia is the rare with antelope called the oryx. Pigeons and quails are seen near the oasis in the coastal areas. Flamingos and pelicans are a common sign. ये वैरायटीज़ है यहाँ के एनिमल्स और वर्ड्स की जो यहाँ पर पाए जाते हैं. अब लाइफ ऑफ द पीपल यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है. पीपल हु लिव इन दीज डेजर्ट वो लोग जो यहाँ रहते हैं लीड अ वेरी हार्ड लाइफ यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है. दे आर मेनली nomads who wander from place to place in search of pasture lands that their animals. यहाँ के लोग इधर से उधर चलते रहते हैं एक ऐसे प्लेस की सर्च में जहाँ पर पोस्चर हो पोस्चर लैंड्स. दीज पीपल आर कॉल्ड बेडुइन्स और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं बेडुइन्स. देयर मेन ऑक्यूपेशन Their main occupation is keeping herds of camel, sheep, goats, and other animals. They move in small groups. They live in tents made of cloth of animal hide. They pitch their tents where they find a patch of grass. When they have to move, they fold their tents and load them on the backs of their camels. The Bedouins mostly move in groups forming long rows of camels called caravans. और दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में चलते हैं कैमल सीप गॉड्स के मूव इन स्मॉल ग्रुप्स. दे लिव इन टेंट्स और एक किस में रहते हैं टेंट में रहते हैं. क्लॉथ और एनिमल हाइड. दे पिच देयर टेंट्स वेर एवर दे फाइंड अ पाच ऑफ ग्राफ जैसे ही इनको कहाँ कहीं पे घास फूस वाली जगह मिलती है वहाँ अपना टेंट लगा लेते हैं और अगली सुबह फिर वो उनको अपना पूरा सामान पैकअप करके फिर आगे की तरफ चल देते हैं. ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कारवंस. Bedouins make cloths, carpets, mats, ropes, and tents out of camels' hair and hides of animals. They trade in these things for the things they need, such as dates, tea, coffee, bread, food, grains, salt, and medicines. ये वहाँ की food है. Dress. The people of Saudi Arabia generally wear traditional Arab clothes. यहाँ के लोग जनरली ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं जैसे हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल क्या है साड़ी धोती कुर्ता पजामा ऐसे ही यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है. मेन वियर अ लॉन्ग कॉटन गाउन called a tha which is sometimes covered by a jacket or a robe. A head covering called gutra is used by men to protect their head from the sun. Women wear long robes called abaya and cover their faces with veil called niqab. ये तो आप सब जानते होंगे नकाब देखो दिख भी रहा है पिक्चर में. कल्चर कैसा है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द रवावा,
Bedouin poetry known as Nabati is popular. Camel racing is a traditional sport. और यहाँ का traditional sport क्या है? Camel racing. Food. A dish consisting of a stuffed lamb known as khuzi. Khuzi is the traditional national dish. आपसे पूछा जाए कि सऊदी अरबिया की या यहाँ की कौन सी ट्रेडिशनल डिश है, ट्रेडिशनल नेशनल डिश, तो आप बताएंगे खूजी. Kebabs are eaten everywhere. Kebab are eaten everywhere. Kapsa, a rice dish with fish or shrimp, is popular. Coffee is the traditional beverage. Language. People of Saudi Arabia speak Arabic. It is the official language of the country. यहाँ के लोग अरेबिक बोलते हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या है? अरेबिक. ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज. यहाँ के लोगों का पेशा क्या है? People living in oases have an almost easy life. Presence of permanent spring and underground water leads of the occupation of farming in the oases. The major crops include wheat, alfalfa, dates, tomatoes, melons, and barley. Sheep, goats, and camels are kept as livestock. The houses here are made of sun-dried bricks having flat roofs and are situated close to each other. Petroleum is the most important natural resources of Saudi Arabia. Saudi Arabia का जो most important natural resource है वो क्या है? Petrol. The oil fields are mainly located in the Dharan, Adadik and Ghavar. यहाँ की दो तीन cities हैं जहाँ पर oil fields भी हैं. Saudi Arabia produces and exports more oil than any other country in the world. Petroleum and refined petroleum products make up more than 90% of Saudi Arabia's revenue from the exports. Besides the oil industry, factories manufacture goods such as chemicals, cement, steel, metal produced and food. यहाँ पर सीमेंट, मेटल, केमिकल, सीमेंट और पेट्रोलियम ऑयल तो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. तो ये यहाँ की ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्री यहाँ पर हैं. सिटीज एंड टाउन्स को देखें. देयर आर अ नंबर ऑफ मॉडर्न सिटीज इन सऊदी अरबिया. यहाँ जो मॉडर्न सिटीज़ हैं वो दीज आर रियाद. जो यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिटी, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे, इंदौर और बड़ी बड़ी सिटी है ना, ऐसे ही वहाँ सऊदी अरबिया की जो है फेमस सिटीज़ वो हैं रियाद, मक्का. मक्का आप लोगों ने सुना ही होगा. जिद्दा, हफफ, बुरैंदा एंड मदीना. रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया. रियाद क्या है? वहाँ की कैपिटल है. और करेंसी क्या है? रियाल. वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? रियाल है. जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ रियाल चलता है. और वहाँ की कैपिटल क्या है? रियाद. मक्का इज़ द होलीस्ट प्लेस फॉर द मुस्लिम एज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, है ना. और जो मक्का है ये बहुत ही फेमस और धार्मिक तीर्थ स्थल है किनके? मुस्लिम्स के लिए, मोमडेंस के लिए. यहाँ से पूरे दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं, मुस्लिम लोग. और ये किसका जन्म स्थान है? प्रॉफिट मोहम्मद का. पिलग्रिम्स कम हेयर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ हज. हज के लिए यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं. मदीना इज अनदर इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर. और मदीना भी एक बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल है. ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? द सऊदी रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फ्राइट सर्विसेज ऑन 2 मेन लाइन्स टोटलिंग 1018 kilometer. These connect Riyadh with the Persian Gulf port of Dammam. SRO passengers trains ऑपरेट बिटवीन रियाद एंड दमाम. और यहाँ पे लोकल ट्रेन्स भी हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए मतलब रेलवे की फैसिलिटीज़ भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं. देयर आर प्लान्स टू एक्सटेंड द नेटवर्क टू द रेड सी पोर्ट ऑफ जेद्दा एंड eventually to the borders of Jordan, Yemen and perhaps all the way to Egypt. सऊदी अरेबियन एयरलाइंस प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. यहाँ पर घरेलू और विदेशियों के लिए भी एयरप्लेन्स की सुविधाएं हैं. जेद्दा, देहरान एंड रियाद आर द मेजर एयरपोर्ट्स. चेंजिंग टाइम. द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम और लिक्विड गोल्ड हैज़ कम्प्लीटली चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. यहाँ के लोगों की बिल्कुल ज़िंदगी बदल के रख दी थी. किसने? जब यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और गोल्ड की
ये मिली वहाँ पे। नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। अब आप देखें तो यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ही हाई प्रोफाइल है। ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज like air conditioned houses, schools, colleges, hospitals and business center are found in cities and towns। यहाँ की सिटी और टाउन्स में आप देखेंगे तो लाइफ स्टाइल बहुत हायर है, आपको हर एक चीज़ वहाँ के सिटीज़ और टाउन्स में आराम से मिल जाएगी। now modern amenities have become possible because of the money earned from the export of petroleum। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टेशन से। पेट्रोलियम हैज़ मेड सऊदी अरेबिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ की पेट्रोलियम मिनरल ने यहाँ को दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे पैसे वाला देश बना दिया है। नाउ वाटर इज नॉट अ रेयर कमोडिटी इन सऊदी अरेबिया। बिग प्लांट्स हैव बीन बिल्ट टू प्योरीफाई सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पज। थैंक यू।